If you are an IGNOU MSc Home Science, Community Development and Extension Management student, and you have reached the MHCP 002 research project in home science, then this video is for you. In this video, I will explain the complete MHCP 002 project guideline in a simple and step-by-step manner. We will cover everything you need to know, including the eligibility, undertake the project, how to select a suitable research topic, the role and eligibility of the project guide, the synopsis preparation process, project report format, submission procedure, and etc. Many students get confused about the project requirement and make mistakes that can delay approval or evaluation. So let's start the video, and you can see on the screen this is the guideline of MHCP 002. So whoever doing this particular project should watch this video till the end. MHCP 002 you have to make under the program MSc Home Science. Okay, so basically you have to know about the eligibility for undertaking the project first. Okay, so learners are eligible to undertake MHCP 002 after fulfilling the academic requirements prescribed by IGNOU for the program and after completing the relevant research methodology course wherever applicable. The project should be undertaken only after the learner has required sufficient theoretical knowledge to conduct independent research. So basically यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया हो और रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में आपके सेशंस हुए हो और आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का पूरा नॉलेज जब हो जाए तब आपको ये करना है. ठीक है, तब आपको ये स्टार्ट करना है. नेक्स्ट थिंग इज प्रोजेक्ट गाइड. ओके, व्हाट इज प्रोजेक्ट गाइड? हु इज प्रोजेक्ट गाइड? So basically project guide is a person assigned to your project report who will help you to make your project or dissertation. Okay, a project guide plays a vital role in supervising and monitoring the learner throughout the research process. ठीक है, तो रिसर्च के प्रोसेस के दौरान जो आपको सुपरवाइजर और मॉनिटर करेंगे वो आपके प्रोजेक्ट गाइड होते हैं. द गाइड असिस्ट इन द सेलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट रिसर्च टॉपिक, improving the project proposal, advising on a research methodology, monitoring data collection, reviewing the draft report and etc. ठीक है, तो ये काम होता है किसका? प्रोजेक्ट गाइड का. तो पहले आपको अपने स्टडी सेंटर पे ये कंफर्म करना है कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड गाइड अवेलेबल है या नहीं है. ठीक है, मैं स्टडी सेंटर पे अपने कोऑर्डिनेटर से कम्युनिकेट करके आपको अपने लिए एक गाइड असाइन कराना है. ठीक है, इन केस गाइड अवेलेबल हो तो. अदरवाइज बाहर से लेना होता है, जो जिनका क्वालिफिकेशन होता है मास्टर्स डिग्री एटलीस्ट एंड 5 years ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपको अगर स्टडी सेंटर पे गाइड नहीं मिल रहा है तो आपको कोऑर्डिनेटर से कम्युनिकेट करके उनका क्वालिफिकेशन जान के आप बाहर से भी गाइड ले सकते हो. ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च टॉपिक. तो ये सबसे पहला एक टॉपिक आपको सेलेक्ट करना होता है. ठीक है, जिस पे आप रिसर्च करोगे. selection of the research topic. The research topic should be relevant to the discipline of home science and community development. तो obviously जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप रिसर्च कर रहे हो आपका टॉपिक उससे रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है, टॉपिक्स के बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे. मैंने कुछ टॉपिक्स भी इस गाइड लाइन के नीचे
लिखी हुई हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। इट शुड एड्रेस अ स्पेसिफिक practical and researchable problem that can be completed within the available time and resources। ठीक है, तो टॉपिक सिलेक्शन के टाइम पे आपको ये समझना है कि आपका जो टॉपिक है वो प्रैक्टिकल हो, रिसर्चेबल हो। आपको कोई ऐसा टॉपिक नहीं सिलेक्ट करना है जिस पे आप रिसर्च ना कर सको या फिर वो बहुत ही बोर्ड हो। ठीक है, the topic should be original, meaningful, and capable of generating useful findings for the community of the or the concerned field। ठीक है, the learner should finalize the topic after discussion and approval from the project guide। तो अपने गाइड से डिस्कशन करने के बाद ही आप अपना टॉपिक फाइनल करोगे। ठीक है, अब प्रोजेक्ट प्रपोजल और सिनॉप्सिस के बारे में बात करते हैं अब। ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्रपोजल और सिनॉप्सिस में क्या क्या, या फिर सिनॉप्सिस में आप ये प्रोजेक्ट प्रपोजल और सिनॉप्सिस वर्ड में कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में रखा हुआ है। तो प्रोजेक्ट प्रपोजल में क्या क्या कंटेंट आएंगे? ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज कवर पेज। ठीक है, present the title of the study along with the learners and guides detail in the prescribed format। तो पहले हम कवर पेज बनाएंगे। ठीक है, जिसमें टाइटल्स होते हैं, आपका नाम होगा, एनरोलमेंट नंबर होगा, प्रोग्राम कोड होगा, ठीक है, स्टडी सेंटर कोड होगा और आपके गाइड्स के डिटेल्स होंगे। तो वो सारे करके आपको कवर पेज बनाना है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज टाइटल ऑफ द स्टडी। ऑब्वियसली टाइटल ऑफ द स्टडी आप लिखोगे, उसके बाद देन यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन, provides background information about the research problem and establishes the context of the study। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपको सिंपली अपने टॉपिक का बैकग्राउंड रखना है। ठीक है, और आपके स्टडी का रिसर्च प्रॉब्लम या फिर उसके कंटेक्स्ट आपको उसमें एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, और उसके बाद बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, कंसेप्ट एंड सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, तो बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में आपको क्या डालना है? जो करंट सिचुएशन है उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड, उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ आप रिसर्च करोगे, वो सारे आपको बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में डालना है। ऐसे ही करके स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है, देन रैशनल ऑफ द स्टडी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी है, ये आप डालोगे। देन रिसर्च क्वेश्चंस डालोगे आप। हाइपोथेसिस, अगर हाइपोथेसिस नीडेड है आपकी स्टडी के लिए तो आप डालोगे, अदरवाइज लेट इट बी। ठीक है, देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, पहले आपको ये समझना होगा। अगर आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में नहीं जानते हैं तो आप नहीं लिख सकते हैं। बेसिकली रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऐसे स्टडीज होते हैं जो कि आपके टॉपिक के रिलेटेड एरियाज में ऑलरेडी जो स्टडीज हो रखी हैं दूसरे रिसर्चर्स के द्वारा, उन स्टडीज को आप अपने रिसर्च में डालोगे, ये दिखाने के लिए कि मैंने ऐसे सिमिलर रिसर्चेस पढ़े हैं और उसके बाद मैंने उसका रिसर्च किया, मतलब कि कौन सा ऐसा गैप है जहां पे रिसर्च नहीं हो रखा और ऐसा गैप को पकड़ा है और उस पर रिसर्च किया है। ठीक है, तो बेसिकली आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर इसलिए पढ़ते हो या फिर अपने प्रोजेक्ट में रखते हो पढ़कर, ताकि आप ये बता सको कि रिसर्च गैप क्या है और इन स्टडीज को स्टडी करके मैंने अपना रिसर्च किया है। ठीक है, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर ये है, और इसका एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर का राइटिंग पैटर्न एक पर्टिकुलर पैटर्न का होता है, पर्टिकुलर पैटर्न में लिखना होता है। तो वो कैसे लिखेंगे आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो किसी दूसरे वीडियो में, जिसमें मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर्टिकुलरली एक्सप्लेन किया है। ठीक है,
रिसर्च गैप, तो रिसर्च गैप मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप सारे रिव्यू ऑफ लिटरेचर को पढ़ के उसमें से कहाँ पे स्टडी नहीं हो रखा वहाँ वो एरिया आपको ढूंढना है जिसको आप रिसर्च गैप कहते हैं, ठीक है। Then research methodology. What is the research methodology? Describe the research design. So basically, few components that you have to add in the research methodology are research design, study area, population, sampling technique, data collection methods and data analysis procedures. ये सारी बातें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में डालनी है। इनमें से आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। आई पर्सनली आंसर द क्वेश्चन। ओके, एथिकल कंसिडरेशन आपको लिखना है। उसके बाद टाइम शेड्यूल, मतलब कौन से काम को आप कितना टाइम दोगे, ठीक है, वो आपको लिखना है। या फिर आप एक चैप्टराइजेशन बना के, मतलब आप अपने प्रोजेक्ट के लिए जो चैप्टराइजेशन रखोगे वो चैप्टराइजेशन बना के उसमें आपको कितना टाइम किस चीज पे देना है वो आप स्केड्यूलिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रेफरेंसेस आपको लिखना है। तो जो भी रेफरेंसेस लाइक इफ यू हैव यूज्ड इन टेक्स्ट citation in your introduction or background of the study or the references in review of literatures, तो वो सारे रेफरेंसेस आपको APA फॉर्मेट में रेफरेंस में डालने हैं, ठीक है। देन एनेक्चर में बेसिकली क्वेश्चनर वगैरह, इंटरव्यू शेड्यूल और इंटरव्यू का पैटर्न, ठीक है, कंसेंट फॉर्म्स, ये सारे आपको एनेक्चर में लगाने हैं। दैट्स इट, ये हो गया कंपोनेंट ऑफ सिनॉप्सिस, ठीक है। नाउ सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल। तो बेसिकली जब आपका प्रपोजल रेडी हो जाता है तो आपको अपने स्टडी सेंटर पे जाना है, अपने गाइड को दिखाना है, ठीक है, एंड उसके बाद सबमिट करना है, ठीक है। आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रपोजल द लर्नर शुड ऑब्टेन द नेसेसरी अप्रूवल एंड सिग्नेचर फ्रॉम द प्रोजेक्ट गाइड बिफोर सबमिटिंग इनटू द एप्रोप्रिएट इग्नू अथॉरिटी एज प्रिस्क्राइब्ड इन द लेटेस्ट गाइडलाइन, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट। तो इन द सेम वे लाइक प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल रिपोर्ट में आप देखोगे कवर पेज सेम चीज है, ठीक है। सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे ये एनेक्चर्स हैं, तो आपको सर्टिफिकेट डालना है, डिक्लेरेशन डालना है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट डालना है, देन एब्स्ट्रैक्ट डालना है 1 पेज के लगभग। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट डालोगे। उसके बाद लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स। अब देखो यहाँ से चैप्टराइजेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। आपको क्या क्या चैप्टर डालने हैं, इंट्रोडक्शन डालना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर डालना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी डालना है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन डालना है, उसके बाद फाइंडिंग्स डालना है। फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, रेफरेंसेस एंड अपेंडिसेस, ठीक है। फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, रेफरेंसेस एंड अपेंडिसेस। रिकमेंडेशन तक आपका चैप्टर रहेगा, इंट्रोडक्शन से रिकमेंडेशन तक। उसके बाद आपको रेफरेंसेस और अपेंडिसेस डालना है, ठीक है। तो इन दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस में बेसिकली क्या करना है आपको, फॉन्ट साइज आपका 12 रहेगा, हेडिंग्स के लिए आप 14 यूज करोगे, स्पेसिंग आपका 1.5 रहेगा, ठीक है, मार्जिन 1 इंच फ्रॉम ऑल साइड, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्मेटिंग का गाइडलाइन है, और टाइम्स न्यू रोमन आपको फॉन्ट यूज करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सजेस्टेड टॉपिक्स की रिगार्डिंग, ठीक है। अब क्या टॉपिक्स आप ले सकते हो जो कि इससे रिलेटेड हो, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक हमारे पास है वो आप देख रहे हो, इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑन वुमेन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये चीज किससे रिलेटेड है, ये चीज है कम्युनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है, इसलिए यहाँ पे रखा गया है। फाइनेंशियल लिटरेसी अमॉन्ग रूरल वुमेन, किस चीज से रिलेटेड, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। रोल ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट, अवेयरनेस ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स अमॉन्ग वुमेन। तो ये काफी सारे हैं टॉपिक्स जो आप अगर चाहते हो देखना तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आप अपने सुपरवाइजर से डिस्कस कर सकते हो।
लास्ट में हम डूज और डोंट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। सो पहला डू, select a research topic that is relevant, feasible and approved by the project guide before beginning the study, ठीक है। Second, collect data ethically by obtaining informed consent from respondents, maintaining confidentiality and recording information accurately, ठीक है। अब क्या नहीं करना है, ठीक है। डू नॉट कॉपी मटेरियल फ्रॉम बुक्स, जर्नल्स, वेबसाइट और प्रीवियसली सबमिटेड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। Second, do not submit the project without carefully checking formatting, references, certificate, signature and required annexures, ठीक है। So in this way we have come to the end of this guideline. Now the thing is, if you still have any question, you can write us back इन द कमेंट बॉक्स, और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं किसी भी क्वेरीज के रिगार्डिंग। एंड इफ यू वांट हेल्प for making your project, you might be busy or you won't be able to make the project. There would be several reasons, okay, for not making the project yourself. Then you can contact us. अगर आप चाहते हो कि आपको प्रोजेक्ट के लिए हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, विल डेफिनेटली हेल्प यू।